Good morning, class 11th. As we have started chapter number 8, secularism from political theory yesterday. During online class, we have covered unit 8.1. Today, I will be continuing my topic 8.2 that stood for the meaning of secular state. In this topic, we will try to understand how the meaning of secular state emerges or how the secular state works. As in yesterday's topic, we have done that there is always a problem either of inter-religious domination or intra-religious domination. Inter-religious domination means when there is disputes, conflicts among the different religions. There could be a dispute between the Hindus or Muslims, between Muslims or Christians, between Christians or Sikhs, between Sikhs and Hindus, and so on. That is inter. Intra means when there is dispute between the different communities who belong to same religion. One way to overcome the problem of inter or intra-religious domination is through education. Through education, the most important perspective is that we can change the mindset of the people, individuals, by sharing, by discussing the problems, can contribute to control or eradicate suspicion between many communities. But is it so easy to do? Sometimes it is being said we should give examples related to different religions. Like our ancestors used to live in the same country. I just use the word ancestors because now I am talking about 100 years back. Okay, almost 80 years back. Where Hindu-Muslim unity was main thing. And in such a circumstances, when Britishers leave India, they divided our country. And at that time, there are many incidents where the Hindu people helped the Muslim community, as well as the Muslim people also helps the Hindus in order to escape, in order to move, in order to live or to save life. Many instances. So such type of theories, such type of stories or incidents to be told to students. For example, when I talk about secularism, many students judge me that as if I am in favor of Muslims. But guys, how can I forget one thing, that my Nana ji and my Nani, of course, but my Nana ji wasn't married at that time. My Nana ji belongs to Lalpur district, which is right now in Pakistan. मेरे नाना जी के पेरेंट्स को असैसिनेट कर दिया गया था. At that time he didn't manage to go or visit his village because he was in town. So his Muslim friend packed him in a trunk. वो बड़े बड़े ट्रंक आते थे स्टील के, तो मेरे नाना जी को उन्होंने उस स्टील के ट्रंक में पैक कर दिया और बॉर्डर तक पहुंचाया. नहीं तो शायद मेरे नाना जी नहीं होते, नाना नहीं होते तो मैं भी नहीं होती. तो he used to tell me the theories like this. Similarly, my Dadaji and Dadiji, my Dadaji was personally called as Munimji, of his place. He settled in a very small town named Sambhal, which is near to Muradabad. At that time, only 20% people used to live in that area. But my Dadu was quite sure that he is the safest person over there. Maximum of his clients were Muslims and they used to come to our place at any moment of time and help us. So there are many stories. तो ये मेरे दिमाग में आ जाता है कि धर्म को जब तक आप नफरत की नजर से नहीं देखोगे, आप उसे यही सोच के देखो कि all religions are equal. So ultimately one way is that you overcome the problem of inter-religious dominations or intra-religious dominations. It may happen. But मॉडर्न टाइम्स में ये कर पाना मुश्किल है. मॉडर्न टाइम्स यानी कि कंटेम्पररी टाइम्स, जहां पर मैक्सिमम
कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी को अडेप्ट कर चुके हैं। डेमोक्रेसी को अडेप्ट करने के साथ जो पावर है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, एंड नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू टेक स्टेप्स फॉर रिलीजियस हार्मनी। या तो पीपल या उनके लीडर्स। अगर लीडर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, सुबह अगर आपको याद हो ऑनलाइन क्लास में तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी एक मटके वाली कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को जब मिक्स करेंगे तो गंदगी आएगी। लेकिन अगर पॉलिटिक्स रिलीजियस प्रेडिसेस को कम करने के लिए काम करती है, रिलीजियस हार्मनी के लिए काम करती है, तब भी हम इंट्रा और इंटर सेकुलर रिलीजियस डोमिनेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन कम्स, ऐसा स्टेट्स कैसे कर सकती हैं? यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। मैं प्लीज रिपीट करूंगी, स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में चेंज होता रहता है। यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इन रिलीजियस प्रेडिसेस को कैसे कम कर सकती है, जिसके लिए हम कहते हैं सबसे पहला स्टेप किसी भी स्टेट को लेना चाहिए कि वो अपने आप को मना कर दे कि मैं थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनूंगी। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है जहां एक स्टेट डोमिनेट की जाती है कोई भी प्रीस्टली ऑर्डर के द्वारा, किसी भी पंडिताई से किसी भी देश को चलाया जाता है, वो स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट कहलाई जाती है। पुराने टाइम में इसका एग्जाम्पल है पेपल स्टेट। पेपल यानी जहां का प्रीस्ट होते हैं पोप, हाई लेवल पादरी जो होते हैं चर्चेस में होते हैं, तो वहां पर जो पोप कह देते थे वही माना जाता था। या मॉडर्न टाइम्स में अगर एग्जाम्पल करेंगे तो वो हमारे लिए आता है तालिबान का। यस ऑफ कोर्स, अफगानिस्तान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात तालिबान की कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में मैं तालिबान को इलेबोरेट कर दूंगी, लेकिन तालिबान में भी पहले थियोक्रेटिक स्टेट थी, धर्म के हिसाब से राज्य को चलाया जाता था, तो उसको मना किया जाए। नंबर 2, देश को चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट और रिलीजन को, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग कर दे। सिर्फ नॉन थियोक्रेटिक स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ उसे किसी भी धर्म से अपना अलायंस नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एंग्लिकन चर्च का। अब आप कहेंगे मैम ये 2 चर्च कौन सी हैं? पेपल स्टेट तो आपको शायद फिर भी समझ में आ गया हो। जब हम एंग्लिकन चर्च की बात करते हैं या एंग्लिकनिज्म की बात करते हैं तो बेटा एंग्लिकन चर्च जो है वो बेसिकली 19th सेंचुरी में 1850s के पास लंदन में फॉर्म की गई थी। इस चर्च के बेसिकली तकरीबन 85 मिलियन मेंबर्स जो थे उन्होंने इसे अटेंड किया था। इनका जो हेड होते हैं वो बिशप्स होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास के दौरान दिखा लूंगी। बेसिकली ये वेस्टर्न क्रिश्चियन ट्रेडिशन को फॉलो करती है, ओल्ड या प्रिमिटिव या कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो यहां पर ये बोला जाता है कि ये नहीं कि सिर्फ आपको थियोक्रेटिक स्टेट को नहीं फॉलो करना, आपको नॉन थियोक्रेटिक होते हुए भी अपने आप को धर्म के साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। मॉडर्न डे में सुन्नी इस्लाम्स जो कि पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं, अगर हम ये कर पाते हैं तो सेकुलरिज्म के हमारे यहाँ पर 3 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब, सेकुलर स्टेट वो सिर्फ स्टेट नहीं होती जो थियोक्रेटिक स्टेट को रिफ्यूज करती है, बल्कि वो कोई भी फॉर्मल या किसी भी तरीके का कोई भी अलायंस, चाहे वो लीगल ही क्यों ना हो, उसे किसी भी धर्म के साथ नहीं रखती, ठीक है। ये बात लाइन याद रखना, कोई भी राज्य अपने आप को डिक्लेयर नहीं करता कि मैं इस धर्म के साथ हूं। क्लास 10th में आप पढ़कर आए थे मेजॉरिटेरियन एक्ट श्रीलंका 1956 में, श्रीलंका विल सपोर्ट बुद्धिज्म एंड टेक स्टेप्स टू फॉस्टर बुद्धिज्म। वो श्रीलंका की गलती थी, ठीक है। नंबर 2, सेकुलर स्टेट जो होती है वो कमिटेड होती है और उसके गोल्स जो होते हैं वो जनरली नॉन रिलीजियस सोर्सेस से होते हैं।
वो धर्म के हिसाब से नहीं चलती, धर्म के बाहर के जो गोल्स अगर प्रिंसिपल्स होते हैं उसके आधार पर चलती है। और सेकुलर स्टेट वो होती है जो कि सपोर्ट करती है पीस को, रिलीजियस फ्रीडम को, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की मनाही करती है, किसी भी तरीके के ऑपरेशन को, दबाव को मना करती है, किसी भी हालात में इंट्रा या इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को बाहर रखती है। वो नहीं चाहती कि वो इसके थ्रू कहीं पर भी इंटरफेयर करे। तो यहाँ आपकी सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन कुछ चेंज हो जाती है। थैंक यू गाइस, आज के लिए अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।